Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall discuss about the level 1 graded worksheets for class 5th maths, and the name of the concept is number system. Let us move on to the questions directly. Question 1. Write the number name for the following numbers. Now here, we need to write these numbers into a number name. So, how we will write it? Let us first start with right side and we'll count the places in the number. That is 8 is at ones place, this is tens place, 4 is at hundreds place, this is thousands, this is 10,000. So we will read this number as 56,478. See, many students here 56,478. सो यहाँ पर कोई एंड वगैरह कोई जो है हम कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली नंबर लिखेंगे 56,478. Now we'll move on to the second one. Again we will count the places for from the right side. That is 2 at ones place, 7 at tens place. Here it is 3 at hundreds place. This is 1,000, 2 at 10,000, and this one at 1 lakh. So we will read this number as 1,24,372. This is 1,24,372. You can place a full stop over here. Now move on to the question 2. Write the numerals for the given number name. अब यहाँ पर हमें नंबर नेम दिया गया है और हमें इसकी न्यूमरल्स लिखने हैं, तो इसका जो है उल्टा होगा. 65,869. So we will write 65,869. Now here we will count the places. This is ones, tens, 100, 1,000 and 10,000. 10,000 means 65,000. So this is 65,000. 8 at 100 place. So 860. So here 6 is at tens place. So 6 tens 660, and here 9 at ones place. So we'll write the 9. Now come to the B. 8,32,732. Again we will write it here. See, here we can see 8 lakh. So 8 at the place of lakh. Ones, tens, 100, 1,000, 10,000 and lakh. So this is 8 lakh 32,000. So this is 32. 3 at 10,000 and 2 at 1,000. So this is 32,700. 7 at 100 place, 3 at tens place, and 2 at ones place. So we'll write it 8,32,732. Move on to the third question. Choose the answer from the bracket and fill in the blanks. Now here, see, first of all we need to understand the international place value chart. Here the question A, 1 million is equal to dash lakhs. See, Indian place value system we have already discussed in our class. Now here we will see the international place value chart. This is ones. So here there are total 3 part in ones, that is ones, tens and 100. Again 3 in thousands, that is 1,000, 10,000 and 100,000. Now again in millions also there are 3. यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमारा जो पीरियड्स रहेंगे वो हर एक 3 या 3 नंबर के बाद हम लोग जो है क्या प्लेस करेंगे, 3 नंबर के बाद हम लोग कॉमा को प्लेस करेंगे. जबकि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है कि 3 2 2 2 ये पीरियड्स फॉलो होते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 million is equal to dash lakh. See here 1 or 10. Here we can see this is 1 million. So it is 10 lakhs. So how many zeros are there in lakh? 1 2 3 4 5. हमें पता है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 5 जीरो होते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 million is equal to 10. So 10 lakhs is equal to 1 million. यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो 10 लाख होते हैं 10 lakhs को हम लोग क्या कहेंगे 1 million कहेंगे. So ये रहा 1 million. ये वाला जो है हमारा 10 लाख. अगर इंडियन से काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद क्या आता है lakh and 10 lakh. So ये इंडियन में यहाँ पर 10 lakh होगा. So 1 million is equal to 10 lakhs. Now B, 1 dash thousands is equal to 1 lakh. Now 1 dash thousand, so कितने thousands मिलाकर हम 1 lakh करते हैं 10 और 100. तो यहाँ पर देखते हैं 100,000 is equal to 1 lakh, because 1 lakh में कितने जीरोस होते हैं 5 जीरोस होते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1 lakh है, उसको लिखा गया है 100,000. So we'll write 100. 100,000. On to the next question.
राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब ये होता है कि जो नंबर दिया है उसका नेक्स्ट नंबर, यानी उसमें अगर +1 करेंगे तो हमें सक्सेसर मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सक्सेसर मींस अ नंबर दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। सक्सेसर ऑफ 11 इज 12 मींस 11 + 1। अब यहाँ पर 11 का सक्सेसर क्या है, तो 12 हो गया। कैसे 12 हो गया, तो 11 में अगर +1 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 11 का सक्सेसर होगा। तो यहाँ पर भी अगर हमें 1,20,000 का सक्सेसर चाहिए, देन वी विल ऐड 1 टू दिस 1,20,000। अगर इसमें हम सक्सेसर ऑफ 1,20,000 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 1,20,001। सो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे, इस नंबर को हम इसको देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर ये गलती करने वाले हैं कि इस नंबर को जो है, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, वेयर इज माई पेन, हाँ हियर इट इज पेन। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, कि हम लिखते हैं 1,20,000, तो इसका सक्सेसर जब बनाना है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। नहीं, ये गलत है, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर प्लस हम करने जाएंगे तो प्लस कैसे होगा, 1,00,000 ये 20,000 हो गया, तो +1 हम कहाँ करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से अगर प्लस करेंगे तो 0 + 1 1, बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे, 0 2 एंड 1। इस तरह से हमें लिखना है। इस तरह से अगर आपने लास्ट में 1 लगा दिया तो ये हमारा आंसर गलत होता है। इस तरह से हमें इसको करना है नहीं। नाउ लेट मी इरेज दिस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इरेज। Now we'll move on to the second question. Now we'll find out the successor of 3,21,099। अब ये सेकंड नंबर है, उसका हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसर निकालेंगे। Let me take the pen first. So successor of again, successor of 3,21,099 is 3,21,099 +1। इसमें हम लोग +1 करेंगे, तो चलो इसको मैन्युअली करके देख ही लेते हैं कि +1 करने से क्या होता है। 3,21,099 +1, हम देखो ये वंस का प्लेस की जगह वंस का प्लेस रहेगा, बाकी सब जगह हम लोग 0 कर देंगे ताकि एडिशन में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कर दिया हमने, अब इसको कर देते हैं प्लस। सो 9 + 1 is 10, so 1 here, 0 here, 1 carry, 9 + 1 again 10, 0 here, 1 carry, 1 + 0 is 1, this is 1 + 0 is again 1, 2 + 0 is 2 and 3 + 0 is 3। So the correct answer is ये वाला हमारा नंबर है। तो बेटर यही होगा कि हर बार आप जो है उस नंबर को +1 करके लिखे, ताकि क्योंकि जब ऐसा नंबर होगा 99 से जब 100 में शिफ्टिंग होगी तब लोग अक्सर कंफ्यूजन यहाँ पर होता है उनको। तो हमें जब भी ऐसा नंबर मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नीचे +1 करके एक बार एडिशन करके लिखेंगे ताकि हमारा आंसर गलत होने का कम से कम चांस हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज 3,21,100। नाउ एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो अब हमें यहाँ पर ए में यहाँ 4 नंबर्स दिए हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर जो है हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर आप लोगों को पता है तो हम लोग सबसे लेफ्ट साइड जो नंबर्स है उससे हम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं पहले यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर 8 है, हमें स्मॉलेस्ट लिख, तो सबसे छोटा चाहिए, यहाँ पर 9 है, तो ये 9 तो है वैसे ही आउट हो गया। क्यों आउट हो गया, क्योंकि 8 वाले नंबर्स जो है वो 9 की कंपैरिजन में छोटे हैं, तो ये तीनों इक्वल हो गए। चलो अब सेकंड नंबर को, जब तीनों नंबर इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग सेकंड नंबर की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 7 9, तो ये तो बड़ा हो गया 7 से, तो इसको काट देंगे। अगेन यहाँ पर 7 है, ये दोनों इक्वल है, 87 87। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 वाला नंबर जो है वो छोटा हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये। और इस नंबर को भी हम लोग काट देंगे। सो 87,564 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज बी। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं सभी 2 lakhs दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये सारे तो इक्वल हो गए। चलो नाउ अब क्या करेंगे, जब सारे फर्स्ट वाले नंबर जो है इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग सेकंड पे चलेंगे। यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ 6 है, तो 6 वाला नंबर छोटा हो गया, 7 वाला नंबर बड़ा हो गया, तो हमें छोटा नंबर चाहिए तो इसको काट देंगे। यहाँ पर अगेन 6 है, तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये तीनों इक्वल है। चलो यहाँ 67 हो गया, ये 6 7 है, ये भी 6 7 है, ये भी 6 7 है, तो यहाँ पर तक तीनों सेम है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये नंबर 7 है,
100 के प्लेस पर यहाँ पर 8 है, तो 8 वाला बड़ा हो गया तो 8 को काट देंगे हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, बड़ा नंबर नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये भी 7 है, ये भी 7, अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो ये वाला नंबर जो है ये बड़ा हो गया और ये वाला नंबर छोटा हो जाता है। 8 यहाँ पर देखते हैं 87 है और यहाँ पर 88 है, तो 87 वाला नंबर क्या है, छोटा हो जाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। On to the next question. Write the place value of underlined digit. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं। चलो देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जानने से पहले हमें फेस वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो फेस वैल्यू के बारे में पहले देखते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। यानी जो नंबर के नीचे अंडरलाइन किया है वो नंबर आपको जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 6 है तो इसका फेस वैल्यू 6 होगा, ये 3 है तो इसका फेस वैल्यू 3 होगा, यानी वो नंबर खुद ही जो है उसका क्या हो जाता है, वो डिजिट खुद ही जो है उसका क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाता है। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, फेस वैल्यू इनटू प्लेस करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ये अंडरलाइन डिजिट है यहाँ पर 3, तो इसका फेस वैल्यू कितना है, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो दिखा है वो नंबर इटसेल्फ ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका प्लेस कौन सा है, तो वंस, टेंस और 100, 100 लिख दिया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 300। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो देखेंगे हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे क्योंकि 6 इसका क्या है, फेस वैल्यू है। फिर इनटू करेंगे, इनटू किससे करना है, प्लेस से, तो प्लेस कौन सा है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो 10,000 में क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। अगर इन दोनों को करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 60,000। करेक्ट आंसर इज 60,000। आई होप आई एम क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर एक कॉमा नहीं लगाया, हम कॉमा लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमें सेम चीज करनी है। पहले तो इसका फेस वैल्यू कितना है, 3 है। अब इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या हो गया, 3 1 3 और बाकी के जीरो हम पीछे ऐसे ही लगा देंगे, तो ये हो गया 3 लाख। प्लेस वैल्यू हो गया 3 लाख। Let us move on to the next question. Write the following numbers in एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। देखो अगर हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर है तो नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले 6 है, 6 वंस प्लेस पर है तो 6 ही लिखा है। यहाँ पर 4 टेंस प्लेस पर है तो 4 टेंस कितना होता है, 40। यहाँ पर 7 देखा जाए तो 7 100 प्लेस पर है तो 7 100 हो गया। 8 जो है वो 1000 प्लेस पर है तो 8000 हो गया। 6 यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10,000 प्लेस पर है तो ये हो गया 60। तो चलो पहले इसके लिए कुछ करते हैं, सबका प्लेस लिख लेते हैं ना। एक्चुअली हम इधर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से करेंगे। सो 8 वंस प्लेस पर है तो 8 हो गया। अब लेते हैं 7, 7 जो कि टेंस प्लेस पर है तो ये हो गया 70। 3 100 प्लेस पर है तो 3 इंटू 100 करेंगे तो ये हो गया 300। 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है तो 4 इंटू 1 2 3 1000 हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 4000। 3 जो है वो 10,000 प्लेस पर है तो 3 इंटू 1 2 3 4 10,000 हो गया। अब इसको करेंगे 30,000। अब 2 जो है वो हमारा कौन से प्लेस पर है, 1 लाख के प्लेस पर है, तो इसको करेंगे 2 लाख। ये हमारा आंसर हो गया 2 लाख। अब हमें इसी नंबर्स को यहाँ पर लिखना है तो हम लिख देंगे ऐसे, 2,34,378। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो सबसे आसान तरीका है एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का। सबसे आसान तरीका देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको सबसे आसान तरीका उसका क्या है। सबसे आसान तरीका यही है कि पहले ये वाले नंबर को लिखिए 2, फिर यहाँ कितने नंबर से 1 2 3 4 5, तो उसमें डिजिट्स लगा दिए 1 2 3 4 5, प्लस का साइन कर दीजिए। फिर लिख दीजिए सेकंड नंबर 3, 3 के बाद कितने नंबर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर लगा दीजिए, खत्म। और लिख दीजिए थर्ड नंबर कौन सा है, 4 4 लिखिए। 4 के बाद कितने नंबर से 1 2 3, तो 3 नंबर्स लगा, 3 जीरोस लगा दीजिए। उसके बाद कौन सा है, 3 है, तो 3 के बाद कितने नंबर है, 78, 2 ही है तो 2 जीरो आएगा। 7 7 के बाद कितना नंबर, एक ही है तो 1 जीरो आएगा। 8 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 8 आएगा। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये हमारे डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में हमें इसको लाना नहीं है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन
डिजिट्स। देखो अब हमें इस नंबर्स को यूज करके सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कब बन सकता है कि जब शुरुआत उसकी ये पूरे ग्रुप में से सबसे छोटे नंबर से हम करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6। इस तरह से हमारा बनेगा 12,346 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ मूव ऑन टू द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका रिवर्स कर देंगे, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 64,321। तो इस तरह से हमें इसको करना है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वी विल मूव फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट और लार्जेस्ट। इस तरह से हमें मूव करना है। तो सबसे छोटा नंबर हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले छोटा नंबर पता करने का रूल क्या है? सबसे पहले सबके डिजिट काउंट करो। इसके डिजिट कितने हैं? 5 है टोटल, इसके 6 है, इसके 5 है, इसके 6 है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? 5 डिजिट वाले दोनों नंबर है वो सबसे छोटे होंगे। अब हमें उन दोनों को कंपेयर करना है। तो 67 यहाँ देखा जाए 67 है, तो यहाँ 76 है। तो ये नंबर हो गया हमारा एक नंबर का हो गया, क्योंकि ये छोटा है उससे उससे बड़ा ये हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसमें लिखा है 4, 4 से इक्वल है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। तो छोटा कौन सा है? छोटा ये हो गया 78। तो ये हो गया थर्ड नंबर पर, ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर पर। तो हम इसका आंसर देखेंगे इस तरह से ये होगा। 67,000 ये हमारा फर्स्ट हो गया, 76 हमारा सेकंड हो गया, 478 वाला थर्ड हो गया, और ये अपना हो गया फोर्थ। इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सीढ़ियां चढ़ने वाला याद रखिए कि जैसे जैसे सीढ़ी बढ़ती जाती है तो नंबर बड़े होते जाते हैं। Move on to the next question. Write all the numbers between 99,998 and 1 lakh 2। अब इन दोनों के बीच के सारे नंबर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अगर +1 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा? तो प्लस करके देख लो। प्लस ऐसे ही करेंगे हम, यहां से इसको प्लस कर देंगे। 9 प्लस यहां से अगर हम करेंगे तो ये क्या हो गया? 9, 9, 9, 9, 9। इस तरह से इसको प्लस करेंगे तो पहला नंबर हमें ये मिल जाएगा। हमें क्या बोला है कि इन दोनों के बीच के, है ना, जितने भी नंबर है, तो पहला नंबर तो ये हो गया। और एक +1 करेंगे इसके अंदर। अगर इसके अंदर हमने +1 किया तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 लाख मिलेगा। पूरा आप प्लस करके देख सकते हैं, 1 लाख मिलेगा। उसके बाद इसमें और एक +1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 लाख एंड 1। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। 1 लाख एंड 1 को क्या करेंगे पता है? पहले 1 लाख लिखेंगे पूरा, और उसके बाद लिखेंगे 1। ये गलत है, ये 10 लाख 1 हो गया। ये गलती करना है नहीं। हमें प्लस कहाँ कहाँ से करना है? नीचे नंबर रख के प्लस करना है, बाजू में रख के प्लस करना है नहीं। और उसमें अगर +1 करेंगे तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। तो टोटल इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो कितने आते हैं? ये 3 नंबर्स आते हैं से। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको सारा